السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مقدار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جم کر درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر کیے گئے تھے کہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پھر پڑھنے کے لیے انہیں قرآن دیتا ہے۔ جب بخشش پر آ جائے ان کی گنہگار امت کو، جب بخشش پر آ جائے ان کے گنہگار امت کو، پھر تحفے میں انہیں ماہ رمضان دیتا ہے، پھر تحفے میں انہیں ماہ رمضان دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان میں کیا کیا بڑے کارنامے ہوئے، کیا کیا بڑی چیز ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک نبی ہے ان کے اوپر صحیفے نازل کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، جو ہمارے اسلام میں 4 بڑی کتابیں زبور، انجیل، توریت اور قرآن شریف۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی ماہ رمضان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن شریف جو نزول ہوا، جب قرآن شریف کا اترنا ہوا، وہ یہی ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی میں نازل ہوا۔ اس ماہ رمضان میں کتنے بڑے بڑے وصال ہوئے، یعنی کون کون گزر گیا اور کن کن کی شہادت ہوئی اسی ماہ رمضان میں۔ تیسری ماہ رمضان 3 تاریخ کو حضرت ماں فاطمہ الزہرا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وصال کا دن ہے۔ کون ماں فاطمہ الزہرا ہے؟ آئیے آپ کو بتاؤ، تھوڑی آپ کو بات بتاؤ کہ کون کس کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ماں فاطمہ الزہرا وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیک بیٹی ہے، جن سے سیدوں کا خاندان چلا۔ حضرت ماں فاطمہ الزہرا سے سیدوں کا اہل بیت کا خاندان چلا۔ ماں فاطمہ الزہرا وہ ہے جس کے کپڑے کے اوپر 18 پیوند لگے ہیں۔ پیوند کس کو کہتے ہیں؟ ہم ہماری بھاشا میں، ہم ہماری گجراتی بھاشا میں اس کو تھیگڑا کہتے ہیں۔ حضرت ماں فاطمہ الزہرا کی ذات ایسی ذات ہے جس کے اوپر 18 پیوند کپڑے کے پیوند لگے ہیں، اور جو 19واں پیوند ہے نا، وہ اونٹ کی چمڑی کا پیوند لگا ہے۔ کون ہے ماں فاطمہ الزہرا؟ جس کے بابا انبیاء کا سردار ہو، جس کا شوہر ولیوں کا سردار ہو، جس کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، اور جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہو، اس کے کپڑے کے اوپر 19 پیوند لگے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے کیا کیا۔ ماں فاطمہ الزہرا کی زندگی کیا ہے؟ ماں فاطمہ الزہرا کی زندگی یہ ہے کہ ایک دن بھوکے رہتے، کسی کو کھانا کھلا دیتے۔ آئیے آپ کو بتاؤ کہ ماں فاطمہ الزہرا ہے کون۔ ماں فاطمہ الزہرا کے پاس ایک مرتبہ روزہ رکھا، جب امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے تو ایک مرتبہ روزہ رکھا۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، عورتوں کا زیادہ تر حال یہ ہے کہ عورتیں یہ کیا کرتی ہیں کہ اگر کوئی بیٹا بیمار ہو گیا، اگر کسی کی کوئی مراد پوری کرنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چلو ہم بڑھیا چل کے جاتے ہیں، چلو ہم وہ کام کر لیتے ہیں، چلو ہم کھانا حرام کر لیتے ہیں۔ آپ اگر کوئی چیز آپ کے اوپر حرام کری، اگر اللہ نے آپ کے اوپر حرام قرار نہیں کی اور وہ آپ نے خود حرام قرار کی، تو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ کیسے حرام قرار کی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی
हमारी बाधा है, किसी को चाय पीने की बाधा है, किसी को वो खाने की बाधा है, किसी को केरी खाने की बाधा है। अगर हमारा काम हो गया तो हम ये बाधा रखेंगे, हमारा काम होगा वो हमारा। मुसलमानों का कोई अहमियत नहीं है कि हम बाधा रखें। ये बाधा सब लोग गैर कौम का है। गैर कौम में से उठाकर अपनी कौम में कभी मतलब अगर किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे। मैं हक बात कहता हूँ, हमारे में बाधा जैसी कोई चीज आती नहीं। अगर आपने चाय किसने बनाना सिखाया? अल्लाह ताला ने, कि भाई पहले शक्कर डालो, दूध डालो, चाय की पत्ती डालो, फिर चाय बनेगी, उससे तुम्हारी खुश्की दूर होगी, तुम्हारी नींद दूर होगी। अल्लाह ताला ने चाय बनाने का फॉर्मूला तुम्हारे अपने दिमाग में डाला, फिर हम चाय बनाते हैं ना। तुम्हारा हक ही नहीं है कि चाय के ऊपर तुम बाधा डालो। हाँ, कम कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो चाय पीना कम कर सकते हो, लेकिन ये कह देना कि ये काम मेरा हुआ नहीं इसलिए मेरी बाधा है, तो ये हराम काम है, ये हराम काम है। हजरत माँ फातिमा ज़हरा, जब हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार पड़े तो माँ फातिमा ज़हरा ने 3 दिन की नीयत रखी कि अगर मेरे बेटे को शिफा हो जाएगी तो मैं 3 दिन का रोजा रखूंगी। और हजरत अली ने भी नीयत रखी, ये हम हमारी भाषा में कहते हैं कि मानता रखी, कि 3 दिन अगर बीमारी से शिफा हो जाएगी तो 3 दिन हम रोजा रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा अता फरमा दी। फिर हजरत अली, हजरत माँ फातिमा ज़हरा ने रोजा रखा। रोजे रखते ही जब शाम का वक्त हुआ, रोजे खोलने का वक्त हुआ, एक रोटी है। फिर जब इफ्तार का वक्त हुआ तो देखा कि भाई कोई आया है, कहा कि मैं एक भूखा इंसान हूँ, खाना खिला दो। उस रोटी का टुकड़ा उठाकर आधी रोटी रखी और आधी उठाकर दे दी। फिर दूसरा आया, फिर मैं साहिल हूँ, मुझे खाना दे दो। फिर आधी में से भी आधी कटिंग की और दे दी। फिर एक आया कि मैं मिस्कीन हूँ, खाना दे दो, वही आधी रोटी उठाकर मिस्किन को दे दी। और जो खजूर थी, खजूर के 2 टुकड़े किए, एक हजरत मौलाए कायनात ने खजूर का टुकड़ा खाया, एक माँ फातिमा ज़हरा ने खजूर का टुकड़ा खाया। और उसी तरीके से 3 दिन इसी तरीके से हुआ। 3 दिन के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत माँ फातिमा ज़हरा के घर पर आए। हजरत फातिमा ने कहा कि क्या तुमने खाना नहीं खाया? तो कहे नहीं। क्यों नहीं खाया? कहा कि पहले दिन मिस्किन आया था, दूसरे दिन फकीर आया था, तीसरे दिन साहिल आया था, इसलिए नहीं खाया और हमने रोजा रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कहते हैं कि तुम्हारे लिए खाना आया है। तुम्हें पता है खाना कहाँ से आया है? खाना जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए भेजा है। और तुमको पता है वो साहिल कौन था, वो फकीर कौन था, वो मिस्किन कौन था? तो कहा कि हमको नहीं पता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो फकीर की शक्ल में, मिस्किन की शक्ल में, साहिल की शक्ल में आए और तुम्हारे पास से खाना लेकर गए। तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इम्तिहान में पास हो गए हो। ये माँ फातिमा ज़हरा की जिंदगी है। फिर 10 रमजान मुबारक, 10 रमजान के दिन हजरत उम्मुल मोमिनीन, हजरत माँ खदीजतुल कुबरा का दिन है। माँ खदीजतुल कुबरा कौन है? माँ खदीजतुल कुबरा हर एक मोमिन की माँ है। उम्मुल मोमिनीन कहा गया। यहाँ पर उम्मुल मोमिनीन क्यों कहा गया? हर एक मोमिन की माँ क्यों कहा गया? हर एक को माँ नहीं कहा जाता। अगर किसी की बेटी हो तो मेरी माँ नहीं बनेगी, अगर किसी की बीवी हो तो मेरी माँ नहीं बनेगी। माँ सिर्फ अपनी एक होती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 11 जोजा थी, यानी 11 पत्नी थी, और 11 को उम्मुल मोमिनीन कहा गया कि हर एक मोमिन की माँ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को और उसके हबीब को पता था कि कल कयामत के दिन तक आते आते मेरे इस्लाम में इतना फेरबदल हो जाएगा कि लोग सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उनकी बीवी यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जोजा को शादी करने का हक था। इसलिए सबसे पहले कह दिया कि उम्मुल मोमिनीन, यानी हर एक मोमिन की माँ, और मोमिन से कोई शादी नहीं कर सकता। माँ खदीजतुल कुबरा पहली हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है। माँ खदीजतुल कुबरा का मकाम क्या है? जब हुजूर के निकाह में नहीं आई थी तब माँ खदीजतुल कुबरा मक्का में सबसे अमीर खानदान में सबसे अमीर बीवी थी, सबसे अमीर औरत थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने व्यापार करना शुरू किया, माँ खदीजतुल कुबरा के साथ व्यापार करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि हुजूर की शान क्या है। हुजूर के ऊपर एक बादल चढ़ता है, ना हुजूर की साया मुबारक है, ना हुजूर को ताप लगता है, ना कभी हुजूर ने कभी उनके व्यापार में कभी अपना
माल कभी मारा नहीं, कभी कोई ऐसी दगाबाजी नहीं की जिससे हजरत माँ खदीजतुल कुबरा को कोई नुकसान होता। यही बात देखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास माँ खदीजतुल कुबरा अपने निकाह का पैगाम भेजती है और निकाह किया जाता है। हुजूर की 25 साल की उम्र है, हजरत माँ खदीजतुल कुबरा की 40 साल की उम्र है। माँ खदीजतुल कुबरा जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में आती है, जोहर के वक्त में निकाह में आती है, जितना माल था हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास रख दिया जाता है कि मेरे आका, ये मेरे सर के ताज, ये मेरा माल है, अब आपके सुपुर्द, आप इनके मालिक हैं, अगर आप चाहो तो रखो, आप चाहो तो मिस्किन में बांट दो। कहते हैं कि असर का वक्त आते आते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो सब माल मिस्किनों में, मक्का के जो मिस्किन थे सब में बांट दिया। हजरत माँ खदीजतुल कुबरा कौन है? हजरत गारे हेरा में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इबादत करने जाते तो पहले खाना बनाते, यानी तोशा मुबारक कहते हैं, उनको खाना कहते हैं, हमारी भाषा में उसको खाना कहते हैं। खाना बनाते, ताजा ताजा खाना बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गारे हेरा पर देने जाते। जो भी उम्रा किए हुए लोग हैं, जो भी हज किए लिए हुए लोग हैं, उनको पता है कि गारे हेरा है क्या। गारे हेरा पर चढ़ते तो चढ़ जाते हैं, लेकिन जब उतरना होता है तो उतर नहीं सकते। लेकिन खदीजतुल कुबरा 40-45 साल की उम्र है, गारे हेरा पर चढ़ती और नीचे उतरती, 2 वक्त की रोटी लेकर जाती, 2 वक्त नीचे उतरती। एक मर्तबा जो भी इंसान, आज का इंसान चढ़ता है ना, वो 2 दिन काबे का तवाफ नहीं कर सकता है, लेकिन खदीजतुल कुबरा की जिंदगी ये है कि हुजूर के लिए जाती और हुजूर के लिए उतरती। हुजूर को भी हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत इतनी थी। आपको बताओ कि हजरत खदीजतुल कुबरा वो इंसान है जिसने इस्लाम सबसे पहले कबूल किया। 2 लोगों ने, जब कुफ्फारे मक्का ने इनकार कर दिया था कि हम तुम्हारा दीन नहीं मांगेंगे, तब 2 लोगों ने साथ दिया। एक का नाम है हजरत माँ खदीजतुल कुबरा और दूसरा का नाम है हजरत अबू तालिब। हजरत अबू तालिब। फिर 15 साबान आता, 15 रमजान आता है। 15 रमजान में क्या है? हजरत इमाम हसन की विलादत का दिन है, यानी जन्मदिन है हजरत इमाम हसन का। इमाम हसन क्या है? सबको पता है कि इमाम हुसैन कौन है, लेकिन आपको क्या पता है कि इमाम हसन कितनी बड़ी शख्सियत है? इमाम हसन इतनी बड़ी शख्सियत है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन के बारे में फरमाते हैं कि मेरा बेटा है, मैं इमाम हसन से हूँ, हसन मुझसे है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हूबहू शक्ल के, यानी हुजूर जैसे ही दिखते इमाम हसन थे। जब हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, उनके बाद सहाबा किराम को अगर हुजूर को देखना होता तो हजरत इमाम हसन को देखते। हजरत इमाम हसन ने कितना सेक्रीफाइस किया। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मेरा बेटा है, जब कल 2 कौम यानी 2 मुसलमान जूथों में लड़ाई होगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन की ये हिस्ट्री यानी इतिहास है कि हजरत अमीर माविया और हजरत इमाम हसन की जब जंग हुई, हजरत हसन ने देखा कि लोग मर रहे, यानी मुसलमान मर रहे हैं। हजरत इमाम हसन ने तख्त को लात मार दी और कह दिया कि अमीर माविया, ये तख्त तुम रखो, मुझे तख्त रखना ही नहीं है, लेकिन सुलह कर लो। सुलह कर ली, तख्त को लात मार दी। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये है कि हम हमारे चचा को, अगर हमारा बेटा हो तो हम कहते हैं कि भाई चचा, यानी काका से महबूब रखना, यानी चचा से दूरी रखना। तुम्हारा चचा तुम्हारा माल लेगा, ऐसा इंसान है, वैसा इंसान है। हमारा बड़ा अब्बा हो तो हमारे बड़े अब्बा के बारे में ये कहते हैं कि उनसे मोहताज रहना, ये हमारा वो कर लेगा, वो तुम्हारा माल ले लेगा, हम ये कहते हैं। लेकिन हजरत इमाम हसन की शान ये शान है कि उन्होंने बादशाहत को छोड़ दिया। 3 बर्रे आजम के ऊपर हजरत इमाम हसन की बादशाहत थी, उनको लात मार दी। किस लिए? क्योंकि मुसलमान की मौत हो रही थी, यानी शहीद हो रहे थे मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान, इसलिए हजरत इमाम हसन ने तख्त को छोड़ दिया। फिर
हजरत इमाम हसन की शहादत, हजरत इमाम हुसैन की शहादत सबको याद है कि करबला में गए थे, करबला में शहीद हुए, लेकिन हजरत इमाम हसन की शहादत याद है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन को यहाँ और यहाँ चूमते, क्यों चूमते? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मेरे कलमा पढ़ने वाले मेरे इस बेटे को जहर देंगे। हजरत इमाम हसन को कम से कम 6 या 7 मरतबा जहर दिया गया। पहली मरतबा खुजूर में जहर दिया गया, फिर थोड़ी सी जलन हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जाते और शिफा मांगते और शिफा हो जाती। 5 या 6 मरतबा जहर दिया गया, लेकिन जो आखिरी मरतबा जहर दिया गया वो हीरो को भूखा करके जहर दिया गया, यानी हीरो को पानी में मिला दिया और पानी पिलाया गया। जैसे ही पानी पीना हुआ, हजरत इमाम हुसैन की आंतड़ी बाहर आ गई, यानी जो ये हाथ ये है ना, पानी का जो नस होता है वो नस फट गया। इमाम हसन को हजरत हुसैन पूछते हैं कि भाई तू बता कि तुमको जहर किसने दिया? तो हजरत इमाम हसन का जो जवाब है ना वो सुनना मोमिनो, कि हजरत इमाम हसन क्या फरमाते हैं कि भाई मुझे अगर शक नहीं है, अगर तुमने उसको कत्ल कर दिया तो अल्लाह के बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह के बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा कि तुम्हारे लिए बेगुनाह को मार दिया। फिर हजरत इमाम हसन फरमाते हैं अगर मुझको शक है कि किसी ने मुझको जहर दिया है तो तू क्या करेगा? तू सिर्फ कत्ल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, वो मेरा बदला कल कयामत के दिन ले लेगा। ये हाल होता है अहले बैत का और आम लोगों का। आज लोग जो बापू लोग का हाथ चूमते हैं ना, ऐसे ही नहीं चूमते। हमारे 12 इमाम है, उसमें एक इमाम हजरत मेहंदी आने वाले हैं, लेकिन 11 इमामों को शहीद किया गया। हमारे जो बाप दादा है ना उनको शहीद किया गया। किस लिए शहीद किया गया? क्योंकि दिन की वजह से शहीद किया गया। हमारा जो इज्जत आज लोग देते हैं, कोई कहता है कि बापू को इज्जत क्यों देते हो, कोई कहता है कि अहले बैत को इज्जत क्यों करते हो, कोई ऐसे ही इज्जत नहीं करता। इज्जत के लिए कुछ गवाना पड़ता है और वो हमारे बाप दादा ने गवाया है। इसलिए आज की कौम, अगर कोई मेमन हो, सिपाही हो, गाजी हो, फकीर हो, कोई भी हो, आज जो अहले बैत को इज्जत देते हैं वो उन्हीं लोगों का सदका है। आइए आपको बताओ, हजरत मूसा काजिम को ना हक यानी कोई गुनाह के बगैर उनको जेल में डाला गया। 7 साल तक जेल में रहे। जेल के बाद जब उनका जनाजा निकला ना, वो भी जेल से निकला। हजरत जाफर को, यानी जो इमामों में से है, हजरत जाफर जिसको 5000 हदीसें याद है, उनको चौराहे पे लाकर 100 कोड़े लगाए गए ना हक गुनाह के बगैर, क्योंकि तब उन लोगों का जो हुकूमत थी वो उन लोगों की हुकूमत थी। फिर रमजान की 21 तारीख को हजरत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम, कौन मौलाए कायनात? उनकी शहादत का दिन है। हजरत मौलाए कायनात जो सारे इमामों पे इमाम है, जो खलीफा में चौथे नंबर पर है, अहले बैत में पहले नंबर पर है, वो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जिसका आज रात से यानी आज चांद रात से दिन शुरू हो जाता है। आज अगर चाहिए तो आप आपके घर पर हजरत मौलाए कायनात के नाम से फातिहा भी दे सकते हो। वही मौलाए कायनात है जिसने खैबर में भी लड़ा, खंदक में भी लड़ा, वो मौलाए कायनात है। फिर 27वीं रात यानी हम 26वीं रात जो शब कद्र की रात कहते हैं, शब कद्र की रात बड़ी रात आती है, उसमें मोमिन अपनी मगफिरत फरमा देते हैं। मोमिन की अल्लाह तबारक व तआला ने इस शब कद्र को हजारों साल की इबादत से भी अफजल करार कर दिया गया है। इस शब कद्र को अगर आप जितनी भी नमाज पढ़ते हो, जितने भी रियाज करते हो, जितने भी दुरूद पढ़ते हो, जितना भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हो, आपको उन सब का सवाब 1000 सालों की इबादतों से भी ज्यादा दिया जाता है। अगर आपको चाहिए, अब 9 दिन बाकी है रमजान शरीफ के, इस 9 दिन में इबादत लूटने का टाइम है। आप 9 दिन के बाद, किसको पता उस साल का हम रमजान देखे ना देखे, किसको पता हमारे भाग में वो रमजान आए ना आए। इसलिए ये चाहिए कि ये 9 दिन बाकी है, इसलिए इबादत में भी रहे। अल्लाह के हबीब, जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, उनकी भी ना फर्मा बरदारी करें। अल्लाह तबारक व तआला के सदके में मैं दुआ करता हूँ, अगर मेरे बोलने में और आपके सुनने में कोई भी किस्म की गलती हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए।